Hello everyone, this side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I teach today I start my lecture number 21, which are came under Unit 3 of Digital Electronics. This lecture is beneficial for both electrical and CSE students. That topic is very important for you and also as per the exam point of view also. Today I cover various topic, that is difference between your synchronous and asynchronous counter, ripple counter which are came under your asynchronous counter, and synchronous counter with up and down configurations. So by these we are design either 2-bit, 3-bit, 4-bit and so on. यानी कि so many type of counter which we can design. So in that lecture, I start with your counter, difference between your synchronous and asynchronous counter. Firstly, what do you mean by counter? What do you mean by counters? Counters means which can counting some phenomena from 000 to 00 to 111. If you're having 2 bits, then counting from phenomena start from your 0, write your 0 0, represent your 0, again 0 1 represent your 1, and 1 0 represent your 3, and 1 1 represent your 4. So by the use of 2-bit, you can use two flip-flop, because we are very well know about your flip-flop lecture. The flip-flop is a device which can store either one bit at a time. If you're storing many number of bits, you can use the cascade configuration of your flip-flops. So the cascade configuration of your flip-flops will be used as a register, which we cover in my previous lecture, and also use in your counters. So we are using two type of counters here. One is called your synchronous counter and other one is called your asynchronous counter. Counter are having two types. One is called your synchronous, another one is called your synchronous counter. In asynchronous counter is also known as a ripple counter. Different flip-flops are triggered with a different clock, not simultaneously, means in which the clock are not simultaneously clocked. So that's why its name is async counter. If the clock is simultaneously clocked, then in that case we will set that it is a synchronous counter. So that synchronous and asynchronous counter we are study one by one, and also we are study its type of your asynchronous counter, either synchronous counter. So firstly start with your synchronous and asynchronous counter. What is the major difference according to which you can differentiate between your synchronous and asynchronous counter? That is, in async counter, your clock is not simultaneously given to the flip-flop. While in synchronous counter, you can give the clock simultaneously to every flip-flop. So that's why its name is sync counters. In what is the difference between your synchronous and asynchronous counter? I will show you one diagram for your counters. That is, here we're using three flip-flops, so that's why its name is 3-bit counters. And or you can say that counting start from your 0 0 0 to 1 1 1. It means there should be count your one by one phenomena according to your clocks. During the first clock pulse, it counting value is 0 0 1, and during the second clock pulse is counting value is 0 1 0. During the third clock pulse is counting value is 0 1 0. Fourth clock pulse 0 1 1, and so on until you reach the final count. With the help of your number of flop will be cascaded configurations. So इसमें क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि आपने कोई काउंटिंग करनी है 0 से लेकर 3 तक करनी है, तो 0 से लेकर 3 के लिए आपको दो फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे. तो दो फ्लिप फ्लॉप, अगर इस फ्लिप फ्लॉप को हम नहीं लगाते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो बाय द यूज ऑफ दो फ्लिप फ्लॉप आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे 0 0 फर्स्ट. ठीक है, 0 0 रिप्रेजेंट योर जीरो काउंट, then 0 1 represent your second count, 1 0 represent your third count, and 1 1 represent your fourth count, and so on. So that's why its name is mode 3 counter. If you're starting the bit with your 0 to 3, clear? So again we can say that you can design the 3-bit counter with the help of your three flip-flop are in cascade. So as per the pictorial view of your
3-bit counter, we can see that we are using here J0, K0 and Q0, Q0 bar. So every flip-flop, either J, K, T and D, having two complementary outputs. One is called here Q, another one is called here Q0. But only your flip-flop can store only one bit at a time. So that's why if you storing many bit at a time, so you can use the cascade configuration of these flip-flops. So by the use of cascade configurations, and we can design counter as in 3-bit counter, 4-bit counter, 5-bit counter and so on. Here we're using 3-bit counter. If you're using the 4-bit counter, you can add one more stage of your flip-flop, either J3, K3, Q3 and Q3 bar. Clear? So that is here you can clearly see that the output of first flip-flop is going to the इनपुट ऑफ योर क्लॉक. इट मीन्स आउटपुट जो है वो आपकी क्लॉक बन रही है. क्लॉक को हमने साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं किया हुआ. फर्स्ट की आउटपुट सेकंड की क्लॉक, देन सेकंड की आउटपुट थर्ड की क्लॉक. अगेन यहाँ से अगर एक कन्फिग्रेशन आप और ऐड करते हैं इन केस ऑफ फिर 4-बिट काउंटर, तो आपका Q2 की जो आउटपुट होगी वो किससे कनेक्टेड होगी? नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से. तो इससे क्या हुआ? द क्लॉक इज नेवर अप्लाई साइमल्टेनियसली. यू कैन वेट अंटिल the output of first flip flop will come at the output of your first flip flop. यानी कि आप तब तक वेट करोगे जब तक आपको यहाँ तक लास्ट वैल्यू नहीं अचीव हो जाती. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट विद योर topic. So by these you can design 2, 3 and 4-bit counters. So as per the figure, you can see that you can design 3-bit counters, and the output of first flip-flop will be the input of your clock, and the output of second flip-flop will be the input of your second clock. So by these we are designing 3-bit counter, either 4-bit counter, either 5-bit counter and so on. So that is a type of your async counter. But your sync counter will also show one more figure here. Here the clock output is going to your input, never goes to clock. So here the clock is common. It means clock is simultaneously applied. So that is a type of your synchronous counter where the clock is applied simultaneously to each flip flop. So here we use 4 flip flop. So that's why its name is 4-bit synchronous counter. Sync means every clock must be synchronized with each other by the use of your common line here. So that is a one major difference between your sync and async counter as per the clock. Here we also mention in sync counter all flip-flops are triggered with clock simultaneously, but in async counter your flip-flop are triggered with different clock, not simultaneously. Sync counter is a faster than async counter in operation. Async counter is slower than sync counter. Why it is slower? Because it output wait until your output is goes to the input of your second clock pulse. यानी कि आउटपुट जो आपकी नेक्स्ट क्लॉक बन रही है तो उसको तब तक वेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने सिंक काउंटर की बात की है तो उसमें क्लॉक सभी को साइमल्टेनियसली अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन क्लॉक के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ा. तो आपका जो सिंक है दैट इज फास्ट एज कंपेयर टू योर एसिंक काउंटर हियर. Clear? Next difference is third one. Sync counter does not produce any decoding error, but async counter produces a decoding error. In sync counter is also called a parallel counter. Async counter is also called a serial counter because that will be perform the function bit by bit. Why bit by bit? Because the output of first going to the input will be behave as a clock of your second flip flop. So that's why that is a bit by bit performing. But in async counter, clock should be applied simultaneously. So all of the flip flop run in a simultaneously manner. So that's why it is a called your parallel counter. Sync counter designing as well as implementation are complex due to the increasing the number of states. Async counter designing as well as implementation is very easy. Sync counter will operate in any desired count sequence. Async counter will operate only in a fixed count sequence, either up and down. Clear? Sync counter examples are sync counter के examples हैं आपके ring counter, Johnson counter. But async counter which are came under your ripple up counter and ripple down counter. So these are the type of your flip flop which are came under your synchronous and async configurations. So you can study one by one. Here we mention ring, ripple and Johnson counter. These three topics are very important for you. So that will be discussed in my later part of the video.
So firstly, start with your async counter with your ripple configurations, or you can say ripple counter. The working of the ripple counter can be best understood with the help of an example. Based on the number of flip-flop used, their 2-bit, 3-bit or 4-bit ripple counter can be designed. Let us look at the working of a 3-bit ripple counter. So asynchronous counter is other name is called a ripple counter, and how you can design the ripple counter, you can take the one example, either 2-bit, 3-bit and 4-bit. If you're taking the example of 2-bit, you can cascade the two flip flops. Okay, if you example taking the example of 3-bit, you can use a 3 flip flop, and if you taking the example of 4-bit, you are taking 4 flip flops. So in that case, you can design 5-bit ripple counter, 6-bit ripple counter, and so on. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क दैट कि काउंटर की जब हमने काउंटर बना तो लिया विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप को कास्केट में लगा के, लेकिन उन काउंटर्स उन लाइक फ्लिप फ्लॉप अब जेके ही लेना है, डी लेना है, टी लेना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, और यू कैन से हाउ द आउटपुट विल बी डिजाइन एंड दैट आउटपुट विल बी यूज फॉर द further processing. So by the use of these phenomena, you can use either D, T and JK flip-flops. So the most versatile nature of the JK flip-flop is we can use the JK flip-flops because the JK flip-flop, as per my previous lecture, the JK flip-flop is one of the flip-flops which can overcome your not valid state by the toggling on that particular state. जैसे हमने पीछे पढ़ा था JK flip-flop के अंदर क्या होता है, as per the JK flip-flops, you can see that the JK flip-flop will came under your non-existent state either at 00 or either at 11 in the case of NAND or NOR configurations. So that phenomena will be overcame in case of your JK flip-flops. So in JK flip-flops, the not valid state came under into your toggling condition. So by the use of toggling phenomena, that toggle phenomena also used in the designing of your flip-flops. So we can use 3-bit counters. So by the use of 3-bit counter, its counting will start from your 000 to 111. So in the further part of the video, I will mention circuit diagram and your waveforms of your 3-bit async counter, or you can say either you can say ripple counter. So आपने ये बोला कि आपने 3-bit counter डिजाइन करना है, तो आप 3-bit counter use करेंगे in which JK are having at logic 1. Why the JK are having at logic 1? बिकॉज द जेके अगर दोनों 1 1 पे हैं, तब उसके अंदर कौन सी कंडीशन अकर होती है, टोगल. तो टोगल से क्या होगा, अगर एक स्टेट पे एक 1 है तो अगले वाला क्या हो जाएगा 0, अगले वाला फिर 1. सो इसी फिनोमिना, इस टोगलिंग के फिनोमिना को हम काउंटिंग में यूज करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रूथ टेबल में क्या हो रही है, हर बार वैल्यू आपकी क्या हो रही है, सीक्वेंस वाइज चेंज हो रही है. जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ देखें हम 0 0 0, अगेन यहाँ पे क्या हुई है, 1 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, सेकंड क्लॉक पल्स पे, देन 0 0 1 0 1 0 एंड 0 1 1. सो अगर ये वैल्यूज चेंज हो रही है फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1, तो हमने जेके की कौन सी स्टेट पे वैल्यू को चेंज करवाना है, क्योंकि देखो अगर आपने जे को 1 रखा था तो आउटपुट वैल्यू 1 आ रही थी, वो आउटपुट वैल्यू 1 पे रहेगी. क्लियर. अगर जेके की वैल्यू आपने 0 रखी तो आउटपुट वैल्यू किस पे रही, 0 रही. लेकिन जेके की कौन सी वैल्यू पे वैल्यू चेंज हो रही है, एट टॉगल स्टेट पे. टॉगल स्टेट पे वो 0 से 1 और 1 से 0 पे जा रही है. तो हमें आउटपुट को हर सीक्वेंस के बाद क्या करवाना है, विद रेफरेंस टू क्लॉक चेंज करवाना है. इसलिए हम जेके की उसी कंडीशन को काउंटर के डिजाइनिंग में यूज करेंगे जहाँ पे आपकी आउटपुट क्या कर रही है, टॉगल कर रही है. तो उसकी टॉगल की जो एक कंडीशन है, दैट विल बी हेल्प फॉर मेकिंग योर काउंटर इजी, counting easy as per the flip flops. क्लियर. तो देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या किया हुआ उसने उसने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए हुए हैं, J0 K0 हैविंग 2 आउटपुट Q0 एंड Q0 बार, अगेन J1 K1 Q1 एंड Q1 बार, J2 K2 एंड Q2 एंड Q2 बार. All are having with apply your logic 1 here. Clear. Because the JK occur the toggling condition at 1 1, so that's why every logic will be going to 1. So that phenomena will help in your counting. So that's why JK at set to 1 1, and having your output Q0 Q0 bar, Q1 and Q1 bar, Q2 and Q2 bar. If your counting start with up,
इट मीन्स द आउटपुट Q0 अब काउंटिंग आपने स्टार्ट करनी है, तो अब Q0 फर्स्ट की जो Q0 आउटपुट है उसको हम नेक्स्ट की क्लॉक बना देंगे। क्लियर? अगर आपने अगेन फिर यहाँ से Q1 जो आउटपुट है सेकंड की उसको नेक्स्ट की क्लॉक बना देंगे। अगर आपने 4 बिट काउंटिंग करनी थी तो यहाँ पे आप एक फ्लिप फ्लॉप और ऐड करेंगे, इट्स नेम इज J3 K3 Q3 एंड Q3 बार। यहाँ से जो Q2 आउटपुट आएगी उसको हम नेक्स्ट की क्या बना देंगे, क्लॉक बना देंगे। तो इस तरह से आप काउंटिंग को बाय द यूज ऑफ एडिशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्लॉक के आगे बबल लगाया हुआ है। तो एक मेजर डिफरेंस और भी यहाँ नोटिस करना है कि आपने आउटपुट को कब चेंज करके दिखाना है एट द आउटपुट पे, कि जब आपकी क्लॉक 0 से 1 पे जा रही है या 1 से 0 पे आ रही है। तो आपकी दो तरह की क्लॉक्स होती है, एक पॉजिटिव एज ट्रिगर और एक क्या होती है, नेगेटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर में क्या होगा कि आउटपुट तभी चेंज होगी फ्लिप फ्लॉप की जब आपकी क्लॉक क्या हो रही है, 0 से 1 पे जा रही है। बट आपने इस केस में क्या यूज कर रखा है, बबल के थ्रू नेगेटिव एज ट्रिगर यूज कर रखा है। तो आपकी आउटपुट तभी चेंज होगी फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप टू फ्लिप फ्लॉप व्हेन द क्लॉक चेंजेस फ्रॉम योर 1 टू 0। अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैंने एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की क्लॉक्स बनाई हुई है। क्लियर? तो इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की क्लॉक में हम क्या करेंगे कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक है। तो इस क्लॉक में आप ध्यान से देखिए कि जब क्लॉक का पहला एज आया फ्रॉम 1 टू 0, क्यों 1 टू 0? क्योंकि आपने यहाँ क्लॉक को नेगेटिव एज ट्रिगर रख रखा है। तो आप क्लॉक के उन्हीं सीक्वेंस को चेक करोगे जहाँ क्लॉक आपकी 1 से 0 पे जा रही है। क्लियर? ठीक है। अब जैसे ही क्लॉक मिली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, जेके को आपने 1 पे सेट कर रखा है तो वो टॉगल करेगा। तो आपकी जो Q0 आउटपुट है, फर्स्ट इनिशियल पे तो सारे 0 0 है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आई आपकी आउटपुट 0 से किस में चेंज हो गई, 1 पे एट फर्स्ट क्लॉक पल्स। जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, फर्स्ट क्लॉक का नेगेटिव एज आया, तो पहली आउटपुट आपकी 1 में चेंज होगी। और ये कब तक 1 रहेगी, जब तक उसको नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं मिल जाता। फिर अगेन ये कब तक 0 रहेगी, जब तक उसको नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं मिल जाता। सो इस तरह ये चलता रहेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जो ये वाली आउटपुट है, ये वाली आउटपुट है वो नेक्स्ट की क्लॉक बन रही है। तो अगर ये 1 है, क्लियर, अगर ये 1 है तो आपकी नेक्स्ट की क्या चली जाएगी, 0 जाएगी। तो उस टाइम में ये काम नहीं करेगा कि क्लॉक क्या जा रही है, उसको 0 जा रही है। लेकिन जब इसकी आउटपुट यहाँ 0 होगी सेकंड पे, जैसे ही फर्स्ट की आउटपुट 0 हुई, वो 0 आउटपुट जब इस क्लॉक के थ्रू इसको मिली, तो क्लॉक ने उसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। इस जेके ने काम किया। क्लियर? ठीक है। तो देखो जब फर्स्ट वाला 0 है तब आपका कौन सा काम कर रहा है, सेकंड वाला 1 हो गया। और ये कब तक 1 रहेगा, ये एज पर दैट कॉन्फ़िगरेशन, ये ऊपर वाली लाइन को नहीं देखेगा, ये इसको देखेगा। कि अब ध्यान से एक बार और बताती हूँ मैं आपको इसमें कैसे काउंटिंग हुई। आपने फर्स्ट बार क्लॉक दी इसको, ठीक है, फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलते ही आपने 0 अप्लाई किया। एज पर दी फर्स्ट क्लॉक पल्स योर Q0 विल बी चेंज टू 1 एंड योर आउटपुट हियर विल बी गेटिंग 1। ठीक है। तो अगर आपको आउटपुट 1 मिल रही है फर्स्ट की, वो कब तक 1 मिलेगी, एज पर दी क्लॉक क्लॉक के नेक्स्ट नेगेटिव एज तक। उसके बाद वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वो कब तक 0 रहेगी, जब तक उसको नेक्स्ट क्लॉक एज नहीं मिल जाता। अगेन फिर ये फिर 1 होगी, और कब तक 1 रहेगी, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स तो ऐसे काम करेगा। अब फर्स्ट की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट क्या बन रही है, क्लॉक बन रही है। तो इसकी क्लॉक अब इसको चेक करेगी एज ए इनपुट Q0 को। तो जब आप इस Q0 की इनपुट क्या है, क्लॉक है, तो इस Q0 ने क्लॉक के अकॉर्डिंग काम किया। अब इस क्लॉक की इनपुट क्या है, Q0 है। अब इट मीन्स क्या होगा, ये वाला जो Q1 है वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, Q0 के अकॉर्डिंग। इट मीन्स उसके लिए Q0 एज एन इनपुट ऑफ क्लॉक है। तो आप जब Q1 का वेवफॉर्म बनाओगे तब आप इस Q0 को चेक करोगे। तो अब इसमें भी Q0 क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर है। तो जब आपकी ये अब ये क्लॉक बन रही है, तो ये बिहेव एज एन क्लॉक करेगी। इसमें भी चेक करोगे क्लॉक कहाँ चेंज हो रही है, फ्रॉम 1 टू 0। जैसे ही क्लॉक 1 टू 0 में चेंज होगी, Q1 क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। और कब तक हाई रहेगा, जब तक नेक्स्ट क्लॉक एज नहीं आ जाता। ठीक है। अब जो Q1 है वो नेक्स्ट की क्या बन रहा है, क्लॉक बन रहा है। तो ये Q1 एज ए क्लॉक की तरह बिहेव करेगा नेक्स्ट की। तो हम Q1 के अकॉर्डिंग किसकी आउटपुट ड्रा करेंगे, Q2 की। अब Q2 कब आउटपुट देगा, जब तक फर्स्ट क्लॉक एज नहीं आ जाता। क्लियर है? क्योंकि Q1 जो है वो Q2 के लिए क्लॉक का काम कर रहा है, तो उसको हम क्लॉक मानेंगे। जब इसको क्लॉक मान रहे हैं, तो क्लॉक के अकॉर्डिंग आउटपुट कब चेंज हो रही है, जब आपका फर्स्ट नेगेटिव एज आ रहा है। क्लियर? ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये वेवफॉर्म ड्रा कर दी। अब वन बाय वन आप इसे देख लीजिए। एट फर्स्ट क्लॉक पल्स आउट इनपुट वैल्यू विल बी 0 0 0 एंड 0 हियर। एट फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो आउटपुट चेंज हुई 0 0 1 पे। सेकंड क्लॉक पल्स पे क्या हुआ, आपकी आउटपुट क्या हो रही है, 0 1 0। थर्ड क्लॉक पल्स पे 0 1 1। क्लियर?
ठीक है, इस तरह ये आउटपुट क्या हो रही है, एज पर द सीक्वेंस क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है. सो दैट इज अ योर रिपल काउंटर, और आल्सो यू कैन से योर एसिंक काउंटर. Again, we start with a synchronous counter. In the previous async binary counter, we saw that the output of one counter stage is connected directly to the clock of your next counter stage. So the result of these that the async counter suffers from what is known as propagation delay. बिकॉज उसने क्या है कि जो आउटपुट फर्स्ट की आउटपुट है वो नेक्स्ट की क्लॉक बन रही है. बाई चांस अगर किसी केस में आउटपुट नहीं आई तो ये तब तक किस में रहेगी, इसकी जो क्लॉक है वो काम नहीं करेगी, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप डिले में चला जाएगा. So one is the major drawback which will notice here, that is your propagation delay. So the propagation delay, however, with the synchronous counter, you can apply so that propagation delay will be minimized through in your synchronous counter by using all of the flip flop with simultaneously clock. It means the clock is synchronization came under in your synchronization. So all of the flip flops in your sync phenomena. ठीक है, तो हम इस चीज को प्रोपेगेशन डिले को कब यूज करेंगे, क्योंकि क्लॉक को वेट ना करना पड़े कि फर्स्ट की आउटपुट आती है कि नहीं आती, तो हम किस में यूज करेंगे, सिंक्रोनस काउंटर में. तो यहाँ पे मैंने पिछली वाली वीडियो में 3 बिट एसिंक का एग्जांपल शेयर किया था, यहाँ मैं आपको 4 बिट सिंक काउंटर का एग्जांपल क्या कर रही हूँ, साथ में शेयर कर रही हूँ. ठीक है, तो इसमें देखो सभी की क्लॉक को, यहाँ आउटपुट नेक्स्ट की क्लॉक नहीं बन रही है, यहाँ क्या हो रही है, सभी की क्लॉक को आपने साइमल्टेनियसली अप्लाई किया हुआ है. लेकिन जेके की वही कंडीशन यूज की है, क्योंकि आपने काउंटिंग करवानी है, और हर एक क्लॉक जैसे जैसे क्लॉक चेंज हो रही है वैसे वैसे काउंटिंग भी चेंज होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट क्लॉक पल्स दोगे तो काउंटिंग होनी चाहिए 0 0 0 0 1. वो डिपेंड करता है कि आपने एलएसबी कहाँ से कंसिडर किया और एमएसबी कहाँ पे कंसिडर किया. सपोज ये अगर ये एलएसबी है तो ये क्या होगा, 0 0 0 1, अगेन 0 0 1 0, अगेन 0 0 1 1, अगेन 1 1 हो गया यहाँ पे. तो क्या होगा अगली वाले में, क्यूसी 0 0, ये 0 0 हो जाएगा, और ये 1 और ये 0. सो ये लाइक 15 टाइम्स ये काउंट चलेगा जब तक आप फाइनल वैल्यू 1 1 1 तक नहीं पहुंच जाते. आफ्टर गेटिंग योर फाइनल वैल्यू यू आर केम अंडर अगेन फर्स्ट फ्रॉम योर 0 0 0. तो देखो इसमें हमने भी जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, उसकी दो आउटपुट है, क्यू एन क्यू बार, क्यूबी एंड क्यूबी बार, QC and QC bar, and QD and QD bar. Here we also drive your up and down counter. If you're taking the example, if you're up counting, so you're going from your 0 0 0 to 1 1 1. If you're taking the example, if you're down counting, you are starting from your 1 1 1 condition and going to down. It means 0 0 0. So देखो यहाँ से ये सर्किट ध्यान से देखिए, आपने 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है. सिंक वर्ड आ गया, सिंक्रोनस, तो सभी की क्लॉक आप क्या करोगे, साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दोगे एक ही क्लॉक पर से. और जेके फर्स्ट को आपने लॉजिक 1 पे यूज किया हुआ है. अब अगर आप हर लॉजिक 1 कैसे दोगे, यहाँ तो आप वीडीडी दे दो यहाँ पे, या फिर क्या दे दो, वीसीसी दे दो, वो तो लॉजिक 1 पे हो जाएगा. या तो वन फिनोमेना ये है कि अगर यहाँ आप गेट्स यूज नहीं कर रहे हो, क्लियर, अगर यहाँ गेट्स यूज नहीं कर रहे हो तो यहाँ से क्या होगा, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट तो बनेगी, लेकिन साथ में आप हर बार जेके को यहाँ से वीडीडी को अप्लाई कर दोगे, वीडीडी या फिर वीसीसी को. तो आपको 4 सप्लाई यूज करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, सर्किट के अंदर डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन के चांस बढ़ जाएंगे. तो उस चीज को हम ओवरकम करने के लिए हमने सर्किट के अंदर इस तरह का सर्किट ऐड किया कि उसने जेके को क्या करवा दिया, 1 करवा दिया. ठीक है, क्योंकि जेके जो अगर दोनों 1 1 है तो वहां पे वो टोगल कर रहा है. तो उस टोगल की एक अच्छी चीज होने के कारण उस टोगल के फिनोमिना को हमने अपने काउंटर में क्या किया है, यूज किया है, क्योंकि काउंटिंग वैल्यू हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बिट्स क्या हो रही है, हर बार चेंज हो रही है. तो चेंजिंग कंडीशन क्या आएगी इन टॉगल में, फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 0. तो सेकंड में हमने क्या किया, फर्स्ट की आउटपुट को नेक्स्ट की इनपुट तो बना दिया, लेकिन यहाँ से क्या किया, इसको 1 by 1 एक एंड गेट से जोड़ा, इसकी आउटपुट को एंड गेट से जोड़ा. अब जो इसकी आउटपुट आएगी, क्योंकि अगर जेके 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, सपोज 1 आ रही है, तो 1 into 1 अगेन 1 हो गया, इसने इसको 1 बना दिया, क्लियर. अगेन यहाँ पे आउटपुट अगर 1 आई है तो ये आउटपुट 1, यहाँ से 1 आया, 1 into 1, इसने इसको क्या बना दिया, 1 बना दिया. तो उसकी जेके की उसी कंडीशन को हमने यहाँ विद द हेल्प ऑफ गेट्स क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया. अगर ये लॉजिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि हमने एंड गेट कैसे लगाए हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिजाइन करके दिखाऊंगी कि हाउ यू कैन कनेक्ट द पर्टिकुलर गेट विद योर इनपुट फ्रॉम दिस टू दिस. सो टुडे के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि हमने जेके की आउटपुट को 1 1 पे करने के लिए ये एंड गेट ऐड किया है यहाँ पे, क्लियर. तो अगर सपोज करो कि
आपका ये क्या है 0 0 0 0। नेक्स्ट केस पे यहाँ 1 हो गया, ये वाला 0, ये 0, ये 0। नेक्स्ट केस पे ये 0, ये वाला 1। तो इस तरह सीक्वेंस चेंज होते रहेंगे और ये काउंटिंग फिनोमेना स्टार्ट होता रहेगा। लेकिन अगर आप आउटपुट जो है वो क्यू ए से कनेक्टेड कर रहे हो, अगर आप उन्हीं इनपुट्स को यहाँ क्यू ए बार से कनेक्ट कर दो क्यू ए की बजाय, ठीक है, अगेन यहाँ पे क्यू बी बार से, अगेन यहाँ पे क्यू सी बार से, तो आपका क्या बन जाएगा 4 बिट सिंक्रोनस डाउन काउंटर। क्लियर? ठीक है। तो आप सिंक काउंटर में सभी को क्लॉक हमने क्या अप्लाई की हुई है, साइमल्टेनियसली अप्लाई की हुई है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, उसने क्या बोला है, इट इज सीन दैट द जेके फ्लिप फ्लॉप इन द काउंटर चेन एंड देन बोथ ऑफ द जेके इनपुट्स आर all tied together in toggle mode, but only in the first flip flop that will be connected to your high logic। बाकी बाकी में तो आपने हाई किया है उसको, ठीक है, बाय द यूज ऑफ एंड गेट। क्लियर? लेकिन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आपने लॉजिक 1 दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ either VDD and VCC सप्लाई। क्लियर? ठीक है। देन द सिंक्रोनस काउंटर फॉलो ए प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेटस इन रिस्पॉन्स टू द कॉमन क्लॉक सिग्नल एडवांसिंग वन स्टेट फॉर ईच pulse। The JK input of flip-flop B are connected directly to the output QA and the flip-flop A, but the JK inputs of flip-flop FFC and FFD are driven from separate AND gate। तो आपने आगे नेक्स्ट टाइम जो है JK को 1 1 पे करने के लिए क्या किया, यहाँ से JK दोनों अगर 1 1 पे हैं तो एक लॉजिक तो 1 1 वाला ही चला गया, ऊपर से अगर सपोज करो कि इसकी आउटपुट जब 1 1 आएगी, तो जब 1 आ रही है इसकी आउटपुट, हमने आउटपुट को क्या करवाना है, लॉजिक 1 पे करवाना है, तो 1 यहाँ से चला गया, तो 1 इंटू 1 अगेन क्या हो गया यहाँ पे 1। तो इस लॉजिक ने नेक्स्ट वाले की आउटपुट को क्या बना दिया, 1 बना दिया। तो जैसे नेक्स्ट वाले की आउटपुट 1 हुई, तो 1 1 पे अगेन ये टॉगल करेगा। तो उसी टॉगल कंडीशन को हम क्या करेंगे, काउंटिंग के सीक्वेंस को सेट करने के लिए, ठीक है, कि फर्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, सेकंड क्लॉक पल्स पे क्या होगा, क्योंकि वो टॉगल कर रहा है, टॉगल की कंडीशन यूज की है हमने उसके अंदर, हमने वो वाली कंडीशन यूज की है कि जेके जब टॉगल कर रहा है, और जेके की उसी टॉगलिंग कंडीशन को हम क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप के अंदर एज ए काउंटिंग की तरह यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। इफ वी एनेबल ईच जेके फ्लिप फ्लॉप टू टॉगल बेस्ड ऑन वेदर और नॉट all preceding flip-flop output high, we can obtain the same counting sequence as with async circuit, but without the ripple effect, since each flip-flop in this circuit will be clocked at exactly the same time. Clear? So next come with your diagram of your waveform of your sync counter। So here we can getting your apply the clock simultaneously। इसमें ये नहीं है कि एक की क्लॉक नेक्स्ट की इनपुट बन रही है, तो जब आपने ये ड्रा करोगे तो इसको देखोगे, जब ये ड्रा करोगे तो इसको देखोगे, ऐसा फिनोमेना हो रहा था आपका ए सिंक में। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप एक सिंपल जो स्टैंडर्ड क्लॉक लिए उसी को नोटिस करोगे। तो जो पहले क्लॉक पल्स का पॉजिटिव एज आया, क्योंकि यहाँ पे आपने ध्यान से देखो, आपने जो सर्किट बनाया है उसके अंदर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, ना कि नेगेटिव एज ट्रिगर है। इट मींस आउटपुट तभी चेंज होगी जब आपकी क्लॉक क्या जा रही है 0 से 1 पे, यहाँ पे बबल नहीं लगा हुआ। ठीक है। तो अगर हमने क्लॉक ऊपर एक क्लॉक का रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम शो कर दिया, ठीक है, अब क्यू आउटपुट पहले कब आएगी, जब आपकी क्लॉक 0 से 1 पे जा रही है, ठीक है, वो आउटपुट 1 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट ये कब तक 1 रहेगी, सेकंड तक, उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगी एंड सो ऑन। क्लियर? ठीक है। अब सेकंड वाली क्या है, ध्यान से देखो। अब फर्स्ट की जो आउटपुट है, फर्स्ट की फर्स्ट की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट की इनपुट बन रही है। क्लियर? फर्स्ट की आउटपुट नेक्स्ट की इनपुट। ठीक है। तो जो सेकंड की इनपुट है वो क्या होगी, फर्स्ट की जो आउटपुट होगी वो होगी। तो फर्स्ट की आउटपुट क्या आ रही है, फर्स्ट की आउटपुट आ रही है आपकी ये वाली। ठीक है। वो इसके लिए नेक्स्ट की इनपुट बन जाएगी। जब वो नेक्स्ट की इनपुट बन रही है तो हम इसको एज ए इनपुट की तरह यूज करेंगे और क्यूए को क्यूबी के अकॉर्डिंग ड्रा करेंगे। तो क्यूबी फिर क्या कब चेंज होगा, जब आपका ये ये इसकी इनपुट बन रही है ना, तभी हम इसको चेंज करेंगे। तो ये कब हुआ, जब आपका फर्स्ट एज नहीं आ जाता, पॉजिटिव एज फ्रॉम ईयर 1 to 0। अगेन जो थर्ड की इनपुट है ये वाली बन रही है, तो हम ड्रा इसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर है? लेकिन ध्यान से चेक कर लिए कि आगे बबल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। नहीं, इसके अंदर भी बबल नहीं ऐड है। ठीक है। एंड अगेन यू कैन चेक ड्रा द टेबल एज पर द diagram here। So here by default here we use the negative edge, and also here we use the negative edge, and here we also use the negative edge from here 0 to 1 or 0 to 1 here। clear? ठीक है।
तो उसमें भी आपने एक को 1 बाय 1 ड्रा करके दिखाया था, इसमें भी आप उसके अकॉर्डिंगली ही ड्रा करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट की आउटपुट है वो नेक्स्ट की इनपुट बन रही है, तो आउटपुट तो उसकी इनपुट के अकॉर्डिंग ही आएगी, कि उस इनपुट की टॉगलिंग कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं। टॉगलिंग मींस वो सीक्वेंस के बाद 0 1 की फॉर्म में चेंज हो रही है, तो ये भी तो 0 1 की फॉर्म में चेंज हो रही है। अगर ये रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद चेंज हो रही है, तो ये चेंज हो रही है, तो ये इसको फॉलो करेगी और ये इसको फॉलो करेगा। तो फर्स्ट स्टेट पे देखिए, देखो चारों जीरोस हैं। सेकंड पे क्या हुआ, 0 0 0 1। थर्ड पे क्या हुआ, 0 0 1 0। फोर्थ पे क्या हुआ आपका, 0 0 1 1 एंड सो ऑन। सो आपने कितने फ्लिप यूज किए हैं, 15। तो 0 से लेकर ये 1 1 1 तक अपनी फाइनल वैल्यू को काउंट करेगा। इसके अंदर क्यू ए आपका एल एस बी है और क्यू डी आपका एम एस बी है। अगेन 15 तक आने के बाद इट विल स्टार्ट योर पोजिशन एट अगेन 0 0 0। So here we use down counter. So what is the difference between the up counting and down counting? Here we apply the QA. In up counting, QA apply to your clock is applied simultaneously, and here QA is the input of your JK. यहाँ कनेक्टेड थी, अब जो JK पे है वो क्या कनेक्टेड होगी, QA बार। तो काउंटिंग वो 1 1 1 1 से लेकर कब तक काउंट करेगा, 0 0 0 0 तक। इट मीन्स वो उल्टा काउंट करेगा, ठीक है, फ्रॉम 1 1 1 1 टू 0 0 0 0। क्लियर? So as we increase the mode count of up and down synchronous counter is an additional flip flop of AND gate. What do you mean by mode? So you are taking 0 to 2 and minus 1. 2 and minus 1 can be built along with a truncated sequence. ठीक है, तो what do you mean by mode? It means if you design the mode 7, you can came under to reach power 3. अगर आपने मोड 7 डिजाइन करना है, तो अगर मोड 7 के लिए आपको दिमाग में ये आएगा कि आपने कितने फ्लिप फ्लॉप लेने हैं। तो अगर मोड 7 है, दैट विल बी इक्वल टू रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आपका 7 8 के अंदर आ रहा है, तो आप 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे। सपोज करो कि आपने 14 करना है, मोड 14 बनाना है, तो 14 के अंदर आप क्या करोगे कि आप कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे, 1 2 3 4, बिकॉज टू रेज पावर 4 कितना होता है, 16। तो आपका टू रेज पावर 3 कितना होता है, 8। आप 8 और 16 के बीच में आ रहे हो, तो आप मैक्सिमम वाला काउंट करोगे। टू रेज पावर कितना यूज करोगे, 4 यूज करोगे फॉर डिजाइनिंग योर मोड 14। क्लियर? नेवर यूज मोड 8। क्लियर? क्योंकि उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली पहले से कन्फिग्रेशन कम है। ठीक है, तो इससे हम मोड, आपको क्वेश्चन आ सकता है सीधा 4 बिट डिजाइन करो, तो आप सिंपली 4 बिट यूज करोगे। अगर 4 बिट की जगह लिखा जाता है कि आपने मोड 15 करना है, तो मोड 15 कैसे करोगे, टू पावर 4 कितना होता है, 16। तो आप टू पावर 4, टू पावर n इज इक्वल टू 4। तो 4 बिट तो वो काउंटर बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके अंदर सीक्वेंस क्या होगा, मोड 15 से 0 0 0 टू लेकर 1 1 1 तक। क्लियर? ठीक है, तो आप इसको एक बार घर जाके ध्यान से पढ़िए। अगर उसके अंदर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज हमने कुछ डिजायर्ड टॉपिक कवर किए हैं। मैंने फ्लिप फ्लॉप का एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की है। एक दो लेक्चर्स और भी इसके ऊपर बनेंगे, काउंटर्स के ऊपर, जिसके थ्रू आपका काउंटर बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। तो काउंटर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो आज हमने एक रिपल काउंटर स्टडी किया है, विच इज द पार्ट ऑफ सिंक काउंटर। और जो सिंक काउंटर है, अभी हमने इनकी डिजाइनिंग पढ़नी है। और मैंने लास्ट में आपको ये भी बताया कि आपने मोड, आपको क्वेश्चन दो वे से आता है, या तो आप सिंपली 4 बिट काउंटर बनाओ या आप मोड 14 बनाओ। क्लियर है? मोड 14 का मतलब क्या है कि आप टू पावर 3 यूज करोगे तो आप 8 तक काउंट करते हो। 3 यूज करने से आप 3 बिट काउंटर यूज करोगे, टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। इट मींस n इज इक्वल टू 3 आया, तो आप 3 बिट के थ्रू 3 फ्लिप फ्लॉप लगाओगे। अगर आप 3 फ्लिप फ्लॉप लगा रहे हो, तो आपकी काउंटिंग वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। क्लियर? लेकिन आपने क्या यूज करना है, मोड 14। तो मोड 14 के केस में क्या होगा आपका, कि मोड 14 में आप टू पावर 3 नहीं यूज कर सकते। आप कितना यूज करोगे, टू पावर 14। 14 करने टू पावर 4, सॉरी, टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो आप किसके अंदर आ जाओगे, 14 के अंदर आ जाओगे। यानी कि कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। तो 14 तक पहुंचने के बाद 14 पे आपकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 4 8। तो 1 1 1 0, 1 1 0 के बाद वो अगेन 0 पे जाना चाहिए। तो आप कुछ सर्किट के अंदर कुछ एडिशन करोगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हाउ यू कैन डिजाइन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोड काउंटर, इधर मोड 4, मोड 5, मोड 6, मोड 7 अप टू सो ऑन। क्लियर? तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में बड़े अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, देन यू कैन आस्क मी प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।